موسیٰ علیہ السلام کا عصا زمین پر گرا اور جو کچھ فرعون کے جادوگروں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں سے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے پیدا کیا تھا وہ سب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سامنے ختم ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا پھینکو تو وہ فوراً ان کی بناوٹ کو نگل گیا، اور پھر ایک جملہ جو پورے مقابلے کا فیصلہ سنا دیتا ہے، اس طرح حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ باطل ہو گیا۔ میدان خاموش تھا، لیکن اگلا حملہ اور بھی زیادہ حیرت انگیز تھا۔ جادوگروں نے حق پہچان لیا۔ جو لوگ کچھ دیر پہلے فرعون کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے آئے تھے وہی اب سجدے میں گر گئے۔ نہ انہوں نے فرعون سے اجازت مانگی، نہ کسی سے مشورہ کیا، نہ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی بہانہ بنایا، بس ایک ہی بات کہی، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ سوچئے، یہ لوگ جادو کو جانتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ آنکھوں کا دھوکہ کیا ہوتا ہے، اور جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا عصا دیکھا تو انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ ان کے فن جیسا نہیں، یہ معجزہ تھا۔ لیکن فرعون کے لیے یہ صرف ایک مقابلے کی ہار نہیں تھی۔ اس کے اپنے جادوگر اس کے سامنے اس کے اپنے نظام کو ریجیکٹ کر چکے تھے، اور سب سے زیادہ اسے ایک بات نے غصہ دلایا۔ اس نے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ یہ جملہ فرعون کی سوچ کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ بتاتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ فیصلہ بھی اس کی اجازت کا محتاج تھا، جیسے ایمان بھی اس کی حکومت کی حدود میں آتا ہو۔ پھر فرعون نے اپنا الزام بدل دیا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ جادوگر ہار گئے، اس نے کہا کہ یہ سب پہلے سے طے تھا۔ اس نے الزام لگایا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے سردار ہیں اور انہوں نے ہی تمہیں جادو سکھایا ہے، یعنی جو چیز پوری عوام کے سامنے ہوئی تھی اس کا جواب فرعون کے پاس صرف ایک تھا، سازش۔ قرآن میں ایک اور جگہ فرعون کے الفاظ اور واضح ہیں، یہ ایک سازش ہے جو تم نے شہر میں مل کر کے کی ہے تاکہ اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے نزدیک صرف ایک نبی نہیں تھے، وہ ایک سیاسی بغاوت کا مرکز بنا دیے گئے تھے۔ فرعون نے اب اپنی اصلی قوت دکھائی۔ اس نے کہا، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور پھر تم سب کو سولی دے دوں گا۔ یعنی ایک وقت تھا جب یہی جادوگر فرعون سے انعام کی امید کر رہے تھے، اب وہی لوگ اس کی طرف سے موت کی دھمکی سن رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ انہوں نے جواب دیا، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور پھر انہوں نے فرعون کو ایک بہت سیدھی بات کہی، تم ہم سے صرف اس لیے بدلہ لے رہے ہو کہ ہم اپنی رب کی نشانیوں پر ایمان لائے۔ یعنی ان کے پاس اب بچنے کا ایک راستہ تھا، اپنا ایمان چھوڑ دیں اور فرعون سے معافی مانگ لیں، کہہ دیں کہ جو ہوا وہ غلطی تھی۔ لیکن انہوں نے یہ راستہ نہیں چنا۔ ان کی آخری دعا تھی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں مسلمان حالت میں موت دے۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کی سب سے عجیب تصویر سامنے آتی ہے۔ فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ ایک طرف اور کچھ جادوگر جو ابھی ایمان لائے تھے دوسری طرف۔ ان کے پاس نہ فوج تھی، نہ محل، نہ سیاسی قوت، صرف یقین۔ لیکن قصہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ فرعون کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ نہیں تھی کہ اس کے جادوگر ہار گئے، مشکل یہ تھی کہ عوام نے سب کچھ دیکھا تھا، ایک پبلک مقابلہ جو فرعون نے خود کرایا تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو سب کے سامنے چیلنج کیا تھا، اور اسی پبلک مقابلے میں اس کے اپنے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب اگر یہ خبر پورے مصر میں پھیلتی تو فرعون کی اتھارٹی کو نقصان ہو سکتا تھا، اور یہیں سے فرعون کے دربار کا اگلا قدم سامنے آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دو گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور تمہیں اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف صرف فرعون نہیں بول رہا، اس کے دربار کے سردار بھی اسے ایکشن لینے کے لیے اکسا رہے تھے۔ انہیں موسیٰ علیہ السلام کا پیغام ایک عقیدے کی تبدیلی سے زیادہ حکومت کے لیے خطرہ نظر آ رہا تھا۔ فرعون نے ان کی بات سنی اور اس کا جواب بہت خوفناک تھا، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہم ان پر غالب ہیں۔ یعنی جادوگروں کی شکست کے بعد بنی اسرائیل کے لیے ظلم کم نہیں ہوا بلکہ اور سخت کر دیا گیا۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے ایک بہت انسانی جواب دیا۔ انہوں نے کہا، ہمیں آپ کے آنے سے پہلے بھی تکلیف دی گئی اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ یعنی ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا آنا فرعون کے ظلم کا فوراً خاتمہ نہیں بنا تھا، بلکہ ظلم اور بڑھ گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مایوس نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے کہا، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور یہ بات بہت اہم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں فرعون کی شکست سے پہلے بنی اسرائیل کا امتحان شروع ہو چکا تھا۔
फिरौन अब भी अपनी जगह कायम था। उसके जादूगर उसके खिलाफ हो चुके थे। उसके दरबार को मूसा अलैहिस्सलाम के असर का खतरा महसूस हो रहा था। बनी इसराइल पर जुल्म और ज्यादा बढ़ रहा था, लेकिन अल्लाह ने अभी अपनी सबसे बड़ी निशानियां नहीं दिखाई थी। पहले कहत आएगा, फिर मिस्र पर एक के बाद एक निशानियां आएंगी, और हर बार फिरौन के लोग कहेंगे मूसा अपने रब से दुआ करो। हर बार वादा होगा, हर बार अजाब हटाया जाएगा, और हर बार फिरौन अपना वादा तोड़ देगा। कुरान कहता है, और हमने फिरौन के लोगों को कहत और फलों की कमी में मुब्तला किया ताकि वो नसीहत हासिल करें। मिस्र की जिंदगी नील के साथ बंधी हुई थी। खेती, अनाज, फल और पानी का पूरा निजाम नील के आसपास घूमता था, और अब फसल कम होने लगी। अनाज की कमी और कहत का असर आम लोगों तक पहुंचने लगा। लेकिन कुरान एक अजीब बात बताता है, जब कोई अच्छी चीज आती तो फिरौन के लोग कहते ये हमारे लिए है, लेकिन जब कोई मुसीबत आती तो कहते ये मूसा और उसके साथियों की वजह से है। यानी निशानियां उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय मूसा अलैहिस्सलाम को बदशगुन समझना शुरू कर दिया, और फिर अल्लाह ने और वाज़ेह निशानियां भेजी। कुरान कहता है, फिर हमने उन पर तूफान, टिड्डियां, जूं, मेढक और खून भेजा, अलग अलग निशानियों के तौर पर। यहाँ कुरान 5 निशानियों का नाम एक साथ देता है, लेकिन जब हम तौरात पे गौर करते हैं वो इन्हीं वाक़यात को एक और तफसीली सीक्वेंस में बयान करती है, और यहीं से दोनों रिवायतों को एक साथ रखकर एक बहुत दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। पहली निशानी पानी का खून बन जाना। तौरात के मुताबिक सबसे पहली बड़ी प्लेग नील के पानी का खून बन जाना। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम नील के पास गए। हारून अलैहिस्सलाम ने फिरौन के सामने अपना असा उठाया और नील का पानी खून बन गया। मछलियां मर गईं, दरिया से बदबू उठने लगी, और मिस्र के लोग पीने के पानी के लिए नील पर भरोसा नहीं कर सकते थे। ये वाकया एक्सोडस 7 में तफसील से आता है। कुरान इसे भी खून की एक वाज़ेह निशानी के तौर पर जिक्र करता है। और यहाँ मिस्र के लिए एक और पहलू भी था। नील सिर्फ एक दरिया नहीं था, वो मिस्र की जिंदगी था। उसका पानी, खेती, अनाज, मछली, सफर, सब कुछ इसी से जुड़ा था। इसलिए नील का पानी खराब होना सिर्फ एक नेचुरल प्रॉब्लम नहीं, पूरी सिविलाइजेशन के लिए क्राइसिस था। लेकिन फिरौन फिर भी नहीं माना। तौरात के मुताबिक उसके जादूगरों ने भी अपने जादू से इस निशानी की नकल करने की कोशिश की, और फिरौन का दिल फिर भी सख्त रहा। दूसरी निशानी मेढक। फिर मिस्र में मेंढक फैल गए। नील, दलदली इलाके और पानी से जुड़ी जिंदगी, हर तरफ मेंढक ही मेंढक। सोने की जगह तक मेंढकों से भर गई। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अपने रब से दुआ करो, अजाब हटा दिया जाए तो वो बनी इसराइल को जाने देगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मेंढक चले गए। लेकिन जैसे ही मुसीबत खत्म हुई, फिरौन फिर अपनी बात से पलट गया। और यहाँ एक दिलचस्प इजिप्शियन कनेक्शन भी है। कदीम मिस्र में मेंढक सिर्फ एक आम जानवर नहीं था। मिस्र के दीन में हेकात नाम की एक गॉडेस मेंढक के सर या मेंढक की सूरत के साथ दिखाई जाती थी। उसका ताल्लुक फर्टिलिटी और चाइल्ड बर्थ से था। इसलिए इजिप्ट की सिविलाइजेशन, जहाँ मेंढक का रिलीजियस सिंबलिज्म भी है, वहाँ मेंढकों का एक अजाब और भी गहरा असर रख सकता है। यहाँ अल्लाह ताला ने यह भी दिखाया कि जिस मेंढक के सर वाली देवी की इबादत करते थे, उसने भी इनकी हिफाजत नहीं की। तीसरी निशानी जूं। कुरान इसे कुम्माल के लफ्ज से बयान करता है। इस लफ्ज की तफसील में मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ माने बयान किए हैं। जूं छोटे कीड़े या जमीन से निकलने वाले कुछ और कीड़े। तौरात में इस प्लेग को नैट्स यानी बहुत छोटे उड़ने या काटने वाले कीड़े के तौर पर इंटरप्रेट किया गया है। वहाँ मिट्टी से ये कीड़े निकलते और इंसान और जानवर दोनों मुतासिर होते। और यहाँ फिरौन के जादूगर पहली बार बिल्कुल बेबस नजर आते हैं। उन्होंने इस वबा की नकल करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर सके। जिन लोगों ने पहले मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में अपनी कुव्वत दिखाई थी, वो जादूगर एक ऐसी चीज के सामने बेबस थे जिसे वो खुद अल्लाह से मंसूब कर रहे थे। फिर चौथी निशानी आती है मक्खी और जंगली कीड़े। अगली वबा फ्लाइज या मक्खी जैसे भारी तादाद में आने वाले कीड़ों की बयान होती है। इस बार एक बहुत अहम फर्क सामने आता है। तौरात के मुताबिक मिस्र और बनी इसराइल के इलाकों में फर्क किया गया, यानी अजाब सिर्फ एक रैंडम नेचुरल डिजास्टर की तरह हर जगह नहीं फैला। फिरौन फिर मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाता है, वादा करता है कि बनी इसराइल को जाने देगा, लेकिन फिर वही होता है, अजाब हट गया और फिरौन ने अपना वादा तोड़ दिया। पांचवी निशानी है मवेशियों पर अजाब। मिस्र के मवेशियों पर एक सख्त बीमारी आई। गाय, बैल, घोड़े, गधे, ऊंट और भेड़ बकरियां, बहुत से जानवर मरने लगे, लेकिन बनी इसराइल के जानवरों को इससे अलग रखा गया। यहाँ एक बार फिर मिस्र की सोसाइटी का एक अहम पहलू सामने आता है। मिस्र में मवेशी सिर्फ माल नहीं थे,
बुल और कैटल इमेजरी मिस्र के दीन में गहरी जगह रखती है। एपिस बुल इसका एक मशहूर एग्जाम्पल था। और यहाँ भी एक चीज नजर आती है कि आगे चलकर उसी बछड़े की इबादत के लिए जादूगर सामरी एक सोने का बछड़ा बनाता है, जो उनके यहाँ पहले से ही मशहूर और आम थी। अब छठी निशानी है फोड़े होना। फिर इंसानों पर फोड़े निकल आए। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने भट्टी की राख उठाई और उसे हवा में उछाला और मिस्र में लोगों के जिस्म पर दर्दनाक फोड़े निकल आए। और इस बार फिरौन के जादूगर भी मूसा अलैहिस्सलाम के सामने खड़े नहीं हो सके। अब मुसीबतें सिर्फ खेतों तक नहीं रही, सिर्फ पानी तक नहीं, सिर्फ जानवरों तक नहीं, इंसान का जिस्म खुद मुतासिर होने लगा। 7वीं निशानी ओले और बिजली। फिर आसमान से आजाब। ओले बरसने लगे, इतने सख्त ओले पड़े कि इंसान, जानवर, खेतों की फसल और दरख्त सब मुतासिर हुए। और इस बार एक और चीज सामने आती है। कुछ मिस्र के लोग फिरौन के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम की बात को सीरियस लेना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों ने अपने जानवरों और माल को पनाह में ले लिया, यानी फिरौन के नीचे रहने वाले हर शख्स उसकी जिद पर मुत्तफिक नहीं था। फिर फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, इस बार मैं मान गया, मैंने गलती की, आजाब हटा दो, मैं बनी इसराइल को जाने दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ओले रुक गए, आसमान साफ हो गया। लेकिन जैसे ही फिरौन ने देखा कि मुसीबत खत्म हो गई, वो फिर बदल गया। अब 8वीं निशानी आती है, टिड्डियां। जो कुछ फसल बच गई थी, अब उस पर टिड्डियों का झुंड आ गया। कुरान भी टिड्डियों का जिक्र बिल्कुल वाज़े तौर पर करता है। टिड्डियां जो कुछ भी हरा था उसे खा गईं। जो फसल ओलों से बच गई थी वो भी खत्म। फिरौन के लोग फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और फिर से वही वादा, आजाब हटा दो, हम ईमान ले आएंगे, बनी इसराइल को जाने देंगे। लेकिन फिर वही कहानी, आजाब गया, वादा गया और फिरौन का इनकार वापस आ गया। 9वीं निशानी अंधेरा। मिस्र पर 3 दिन का गहरा अंधेरा छा गया। लोग अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे, लेकिन बनी इसराइल के इलाकों में रोशनी थी। ये वाकया कदीम मिस्र के हवाले से बहुत पावरफुल इमेजरी रखता है, क्योंकि मिस्र के दीन में सूरज और रोशनी बहुत अहम थे। उनका सबसे बड़ा माबद रा था, जो सूरज का देवता था, और फिरौन अपने आप को उसी की औलाद समझता था जो इस जमीन पर है। सूरज से जिंदगी, निजाम और फिरौन की कॉस्मिक अथॉरिटी तक जोड़ी जाती थी। और अब मिस्र एक ऐसी जगह बन चुका था जहां पानी, फसल, जानवर, इंसान, आसमान और रोशनी सब एक के बाद एक आजाब का शिकार हो चुके थे। लेकिन फिरौन अब भी नहीं माना। और अब 10वीं निशानी आती है, पहले बेटों की मौत। तौरात इसे आखिरी और सबसे सख्त वबा के तौर पर बयान करती है। मिस्र में हर घर का पहला बेटा मौत का शिकार होता है, फिरौन के घर से लेकर आम आदमी के घर तक और मवेशियों के पहले बच्चे तक। और इसी के बाद फिरौन आखिरकार बनी इसराइल को मिस्र से जाने की इजाजत देता है। यहीं से एक रिवायत निकल कर आती है जिसको आपने सुना होगा, पासओवर। यहूदी तारीख का एक बहुत अहम हिस्सा बन जाता है। बनी इसराइल के एक रबाए अकीवा की एक मशहूर रिवायत के मुताबिक मिस्र में हर वबा अपने अंदर 5 वबा के बराबर थी, यानी 10 वबा 50 बन गई और समंदर पर 250। हालांकि ये बात की रबनिक तफसीर है, लेकिन इन तमाम रिवायतों को साथ रखने से एक चीज बहुत वाज़ेह होती है, फिरौन को एक बार नहीं बार बार मौका मिला। कुरान इस पैटर्न को बहुत साफ तौर पर बयान करता है। जब उन पर आजाब आता तो कहते, ए मूसा, अपने रब से हमारे लिए दुआ करो, हम ईमान लाएंगे और बनी इसराइल को तुम्हारे साथ भेज देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते, आजाब हटा दिया जाता। लेकिन कुरान कहता है जब हम उनसे आजाब हटा देते तो वो फौरन अपना वादा तोड़ देते। और यही फिरौन की असल कहानी थी। निशानियां बढ़ती गईं, मुसीबतें बढ़ती गईं, वादे बढ़ते गए, लेकिन इनकार वही रहा। आखिर वो वक्त आ गया जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से एक नया हुक्म मिला। अब बनी इसराइल छुप कर इंतजार नहीं करेंगे। अब वो मिस्र छोड़ेंगे, रात के वक्त अपने घरों से अपना सामान उठाएंगे और नील की उस जमीन को पीछे छोड़ देंगे जहां उनकी नस्लें सदियों से गुलाम रहती आई हैं। लेकिन फिरौन उन्हें इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। उसके लिए ये सिर्फ कुछ गुलामों का भागना नहीं था, ये उसकी सल्तनत के अंदर से एक पूरी कौम का निकल जाना था। और जब उसे पता चला कि बनी इसराइल सच में मिस्र से निकल चुके हैं तो उसने अपनी फौज को उनके पीछे भेज दिया। आगे बनी इसराइल, पीछे फिरौन के रथ। फिरौन हर बार मूसा अलैहिस्सलाम से वादा करता रहा बनी इसराइल को जाने देगा, लेकिन हर बार आजाब हटने के बाद वो अपना वादा तोड़ देता। अब वो वक्त आ गया था जब किसी और वादे की जरूरत नहीं थी। अल्लाह का हुक्म आ चुका था, बनी इसराइल को मिस्र से निकलना था। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे बंदों को रात के वक्त लेकर निकल जाओ, बेशक तुम्हारा पीछा किया जाएगा। मिस्र की वो कौम जो नस्लों से फिरौन के नीचे जिंदगी गुजार रही थी,
अब अंधेरे में अपने घर छोड़ने वाली थी। ये कोई छोटा सफर नहीं था। बनी इसराइल सिर्फ चंद लोग नहीं थे, उनके घर थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, मवेशी थे, सामान था, और पूरी कौम को एक ही वक्त में मिस्र से बाहर निकलना था। आखिरी अजाब के बाद फिरौन ने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को रात में बुलाया और कहा, उठो, मेरी कौम के दरमियान से निकल जाओ। यानी अभी वो फिरौन जो सालों से बनी इसराइल को रोक रहा था, खुद उन्हें जाने का हुक्म दे रहा था। फिर वो रात आ गई, बनी इसराइल मिस्र से निकल पड़े। उनका सफर सुक्कोत की तरफ गया, फिर एथाम, और उनके सामने अब रेगिस्तान का इलाका था। उनके पास मूसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत थी और उनके पीछे अभी फिरौन नहीं था। लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर तक नहीं रहनी थी, क्योंकि फिरौन को जब पता चला कि बनी इसराइल सिर्फ कुछ दिन के लिए नहीं निकले, वो वाकई मिस्र छोड़ चुके हैं, तो उसका रवैया बदल गया। फिरौन और उसके सरदारों ने कहा, हमने ये क्या कर दिया? हमने इसराइल को अपनी खिदमत से क्यों जाने दिया? यानी बनी इसराइल के चले जाने के बाद फिरौन को अपना नुकसान नजर आया। फिर उसने अपना रथ तैयार कराया और अपनी फौज को जमा किया। तौरात 600 बेहतरीन रथों का जिक्र करती है, और इसके अलावा मिस्र के दूसरे रथ, घुड़सवार और फौज सब बनी इसराइल के पीछे निकल पड़े। यहाँ कदीम मिस्र की एक और तस्वीर सामने आती है। इजिप्शियन फौज में रथ सिर्फ सवारी नहीं थे, ये मिस्र की जंगजू कुव्वत का एक अहम हिस्सा थे। 2 आदमियों का रथ तेज रफ्तार और खुले इलाकों में बहुत मुयस्सर, और मिस्र के पास इन रथों का एक मुनज़्ज़म मिलिट्री सिस्टम था। इसलिए बनी इसराइल का पीछा करने वाली फौज कोई छोटा सा पुलिस ग्रुप नहीं थी, ये फिरौन की सल्तनत की मिलिट्री पावर थी। और अब बनी इसराइल के लिए सबसे खौफनाक लम्हा आ गया। उन्होंने पीछे देखा, फिरौन की फौज आ रही थी और आगे का रास्ता मुश्किल। बनी इसराइल घबरा गए और मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी कि हमें यहाँ मारने के लिए ले आए हैं? ये रवैया इनका हमेशा से रहा है अपने तमाम अंबिया के साथ। फिरौन की फौज दूर से नजर आई और उन्हें लगा कि वो दोबारा उसी जिंदगी में कैद होने वाले हैं। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम घबराए नहीं। उन्होंने कहा, हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे रास्ता दिखा देगा। ये मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से के सबसे अजीम जुमलों में से एक है। आगे क्या है मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं पता, पीछे फिरौन है, लेकिन उन्हें अल्लाह का वादा पता है। और इसी वक्त अल्लाह की तरफ से एक और हुक्म आया। मूसा अलैहिस्सलाम अपना असा समंदर पर मारने का हुक्म दिया गया। कुरान कहता है, फिर मूसा की तरफ वही की गई कि अपना असा समंदर पर मारो, और फिर वो हुआ जिसकी मिसाल इंसानी तारीख में मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े के अलावा मुश्किल से ही मिलती है। समंदर फट गया। कुरान इस मंजर को बहुत मुख्तसर लेकिन बहुत ताकतवर अल्फाज में बयान करता है। तो वो फट गया और हर हिस्सा एक बड़े पहाड़ की तरह हो गया। पानी दोनों तरफ जैसे बुलंद दीवारों की सूरत में खड़ा हो गया और बीच में एक रास्ता बन गया। बनी इसराइल खड़े रहे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें उस रास्ते से गुजरना शुरू किया। एक एक करके लोग उसकी सूखी जमीन पर चलने लगे। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, मवेशी और पूरी कौम पानी के दरमियान से गुजर रही थी। तौरात भी इस मंजर को इस तरह बयान करती है। मूसा अपने साथ समंदर की तरफ उठते हैं। रात भर तेज हवा चलती है, पानी पीछे हट जाता है और बनी इसराइल खुश्क जमीन पर समंदर के दरमियान से गुजरते हैं। उनके दाएं और बाएं पानी की दीवारें थीं, लेकिन बनी इसराइल अभी दूसरी तरफ पहुंचे भी नहीं थे कि फिरौन की फौज भी उसी रास्ते में दाखिल हो गई। सोचिए मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कितना अजीब मंजर था। एक तरफ बनी इसराइल समंदर के दरमियान आज़ादी की तरफ जा रहे हैं और उनके पीछे वही फौज जो उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहती है। फिरौन के रथ समंदर के अंदर उतर गए। उसकी फौज मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे उसी रास्ते पर चलती आ रही थी। एक वक्त पर उनके रथों के पहिए मुश्किल से चलने लगे। फौज में अफरा तफरी फैल गई और मिस्रियों ने कहा, हमें बनी इसराइल से भागना चाहिए, उनका रब उनकी तरफ से लड़ रहा है। लेकिन वापस जाने का वक्त खत्म हो चुका था। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को दोबारा अपना हाथ समंदर की तरफ उठाने का हुक्म दिया और पानी वापस आ गया। कुरान कहता है, और मूसा और उनके साथ जो लोग थे सबको हमने बचा लिया और दूसरों को डुबो दिया। फिरौन अपनी फौज के साथ पानी में गर्क हो गया। और इस वाक़े का सबसे अहम पहलू सिर्फ ये नहीं कि बनी इसराइल बच गए, बल्कि फिरौन की वो कुव्वत जिस पर उसे इतना भरोसा था उसी के सामने खत्म हो गई। रथ, फौज, सिपाही, हुकूमत सब पानी के नीचे और मूसा अलैहिस्सलाम उस पार खड़े थे। बनी इसराइल उनके साथ। मिस्र पीछे रह गया, फिरौन पीछे रह गया और अब एक नई जिंदगी उनके सामने थी। लेकिन फिरौन का आखिरी लम्हा अभी कुरान में और भी ज्यादा हैरत अंगेज था, क्योंकि डूबते हुए फिरौन ने उसी रब पर ईमान लाने का दावा किया जिसका इनकार वो सारी जिंदगी करता रहा। आखिरी लम्हे से पहले फिरौन ने वो बात कही जो उसने पूरी जिंदगी कहने से इनकार किया था। कुरान कहता है, मैं ईमान लाया कि कोई माबूद नहीं है सिवाय उसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं मुसलमानों में से हूँ।
यानी जिस फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था तुम्हारा रब कौन है, अब वही फिरौन उस रब को तस्लीम कर रहा था। लेकिन जवाब आया अब, और पहले तुमने नाफरमानी की और फसाद करने वालों में से थे। यानी ईमान का वक्त वो था जब मूसा अलैहिस्सलाम उसके सामने मौजज़ात लेकर आए थे, जब जादूगर सजदे में गिर गए थे, जब कहत आया, जब तूफान और टिड्डियां आई। हर बार दरवाजा खुला, लेकिन फिरौन ने हर बार इनकार किया। अल्लाह ने फिरौन के जिस्म के बारे में कहा, आज हम तुम्हारे बदन को बचा लेंगे ताकि तुम अपने बाद वालों के लिए निशानी बनो। और यहीं से एक हज़ारों साल पुराना सवाल पैदा होता है, क्या मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन आज किसी म्यूजियम में मौजूद है? कदीम मिस्र में फ़ैरोज़ के जिस्म को मौत के बाद प्रिजर्व किया जाता था, जिसे ममीफिकेशन कहते हैं। मिस्र की सिविलाइजेशन की सबसे मशहूर जनाजे की रिवायत में रॉयल टूम्स, वादियाँ, ममीज और जनाजे के इक्विपमेंट आज आर्कियोलॉजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 19वीं सदी में मिस्र में रॉयल ममीज का एक ऐसा कलेक्शन मिला जिसने कदीम मिस्र की हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। देर अल बहारी रॉयल कैश 1881 में आर्कियोलॉजिस्ट को थीब्स नदी के करीब एक हिडन मकबरा मिला। अंदर मिस्र के कई पुराने बादशाहों के ममीफाइड रिमेन्स छुपाए गए थे। इनमें रामसीस सेकंड और मेरनेप्टा दोनों शामिल थे। फिर 20वीं सदी में इजिप्शियन ममीज साइंटिफिक एग्जामिनेशन के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गई। एक्सरे, सीटी स्कैन, डेंटल एग्जामिनेशन, बोन एनालिसिस और ममीफिकेशन की टेक्निक का मुताल्ला आज हम इन रॉयल बॉडीज से कदीम मिस्र के रूलर्स की उम्र, सेहत, खुराक और कभी कभी मौत के मुमकिन असबाब तक समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंच साइंटिस्ट डॉक्टर मॉरिस बुकाइल का नाम हो सकता है आपने सुना हो। इनके सामने रामसीस सेकंड का जसद ला के रखा गया। इन्हें वक्त दिया गया उसे स्टडी करने का, और इन्होंने कोशिश की समझने की कि इस शख्स की मौत का सबब क्या था। और काफी स्टडी के बाद उन्होंने एक चीज पर गौर किया कि इसके जिस्म में नमक है। वो समझ ना सके कि ये कैसे मुमकिन है। कुछ मुसलमान आर्कियोलॉजिस्ट के साथ उनका मुताल्ला हुआ और उन्होंने बताया कि कुरान में जिक्र है कि फिरौन जो मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त पे था, उसकी मौत रेड सी में डूब कर हुई थी। डॉक्टर मॉरिस बुकाइल हैरान रह गए। वो अरब जाते हैं, वहां जाकर के इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, खास तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से के बारे में। और उस तफसीली जानकारी के बाद वो खुद इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये जसद जो उनके सामने है, इसमें नमक का सबब उस पानी में डूब कर होने वाली मौत है। वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं और रामसीस सेकंड का वो जसद म्यूजियम में रख दिया जाता है, जैसा कि अल्लाह ने कहा था कि आने वाले लोगों के लिए निशानी बनाएगा। फिरौन के साथ वैसा ही हुआ, और आज भी लोग उसके जिस्म को देखते हैं और याद करते हैं कि एक शख्स जिसने अल्लाह की रुबूबियत को चैलेंज करना चाहा था, आज वो अल्लाह की रुबूबियत की निशानी बन गया है।